Hello, my dear friends. This is Prashant Mamani here, and I hope you all are doing good. The date today is 5th of November 2016, और आज का जो टॉपिक है वो है What is triple talaq? Now we have seen this thing around us. ये जो टॉपिक है वो काफी बार न्यूज़ में काफी चर्चा में रहा है, और जब तक मुझे पता है, जब तक मैंने ऑब्जर्व किया है, that I have found that people are bit confused regarding what is triple talaq, what is triple divorce, as per Quran, what is the reality behind triple talaq. So it's in this lecture I'm going to discuss some points with you that ट्रिपल तलाक इज नॉट समथिंग व्हाट वी अंडरस्टैंड. जैसे कि टेक्स्ट मैसेज पे 3 times तलाक लिख दिया, या फिर वाया ईमेल if you write down and say talaq 3 times, that is not what triple talaq is all about. It is totally different. It is more ethical, it is more compassionate, and we are going to discuss that in today's lecture. One of the main reason why I have selected this topic is that once you know, अगर आपको एक बार clearly understand हो गया कि ट्रिपल तलाक क्या है, उसके बाद आप इसको वुमन पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि whether it is in favor or it is against the woman, particularly Muslim women, may it be in India or any other country. Of course हम सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, लेकिन अगर वर्ल्ड के कोई और देश में कोई और एग्जांपल है, then we should also take that as well in consideration, isn't it? So let's start what is there in this slide, right? Now, Muslim marriage. We're gonna quote this one, that divorce isn't such a tragedy. A tragedy is staying in an unhappy marriage, teaching your children the wrong things about love, and nobody ever died of divorce. इसका मतलब है कि डिवोर्स इतनी भी बुरी चीज नहीं है जितनी जनरली स्पीकिंग लोग समझते हैं. डिवोर्स एक ऐसी चीज है कि अगर आप किसी भी पर्सन के साथ खुश नहीं हो, then you have every right to move away from that person, isn't it? अगर आपका प्रेजेंट अच्छा नहीं जा रहा है, बहुत ट्राई कर ली, and if things are not going right, then you can think about the alternative of staying with that person, and that is divorce. And the other thing is that I got it from an article that Supreme Court of Pakistan का quotation है that among Muslims, marriage is not a sacrament, but it is in the nature of civil contract. As per Muslim marriage, right, Muslim tradition के तहत, it is not a religious thing, right? Like, for example, if you are living in India, then you would be knowing about the marriage system of Hinduism. Now, in Hinduism, marriage is considered as a religious act, isn't it? ये धर्म का एक भाग माना जाता है, but it is very different in Muslim tradition. It is a civil contract. Such a contract undoubtedly has spiritual and moral overtones and undertones, but legally, in essence, it remains a contract between the parties. Now, अगर दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल, थोड़ा बहुत मोरल ओवरटोन्स एंड अंडरटोन्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो एसेंस है, जो इसका कोर है, वो कोर है इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज. मूविंग ऑन, मैरिज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट. नाउ, जैसे कि मैंने बताया कि मुस्लिम समुदाय के अंदर मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, like any other contract, right, there are two things that are important when you talk about a contract. The first thing is that you can enter the contract.
The second important thing is that you can exit the contract if things are not going right. तो आप मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी हो सकते हैं, और अगर कुछ सही नहीं चला then you can move out of that contract as well. और मजे की बात यह है, इंटरेस्टिंग चीज है ये, that it was this religion, Muslim Islam, that अर्लीस्ट के सबसे पहले एज ए प्रोविजन को निकालने वाला अगर कोई रिलीजन है देन दैट इज इस्लाम. आप एग्जांपल लेते हैं हिंदुइज्म का. तो हिंदुइज्म में जब शादी होती है दैट इट इज कंसिडर्ड दैट फॉर 7 लाइफ्स, फॉर अगले 7 लाइफ में आप यही पार्टनर के साथ अपने 7 मैरिजेस, लाइक 7 लाइफ के मैरिजेस को एग्जीक्यूट करेंगे. That itself means that there are no provisions of divorce, right? I'm talking about from religious perspective. मैं legally बात नहीं कर रहा हूँ. Legally you can take divorce, but from the religious point of view, divorce is something which is not accepted or which is not acceptable in Hinduism. लेकिन इस इश्यू पे मुस्लिम रिलीजन ने बहुत पहले से ही एक प्रोविजन बना दिया था कि अगर 2 लोगों के बीच में थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट देन यू कैन एग्जिट आउट ऑफ रिलीजन एज वेल. देन एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर डिवोर्स भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट शुड गो अगेंस्ट वुमन. डिवोर्स 2 लोगों का होता है, a man and a woman should not be in a bad position कि इससे उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी बैलेंस्ड वन के कोई भी 2 पार्टी में किसी को भी प्रॉब्लम्स ना हो. मूविंग ऑन, ट्रू ट्रिपल तलाक. एग्जैक्टली ट्रिपल तलाक का मतलब क्या है? नाउ एज पर कुरान, even before uttering the word talaq, तलाक शब्द बोलने से पहले there should be a meeting. एक मीटिंग होनी चाहिए जिस मीटिंग में दोनों पक्ष, from man's side and from the lady's side as well, दोनों मियाँ और बीबी दोनों की तरफ से वेल विशर्स मौजूद होने चाहिए. और इन वेल विशर्स और ये सब लोगों की ये ट्राई होनी चाहिए कि किसी भी तरह से कोई सॉल्यूशन निकाले जिससे कि ये मैरिज बच सके. और अगर आफ्टर द मीटिंग एज वेल ये थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट और ये मीटिंग फॉर एग्जांपल फेलियर रही, देन फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड तलाक कैन बी यूज्ड और कैन बी uttered, right? This has to be understood very clearly कि अगर 2 लोगों के बीच में चीजें अच्छी तरीके से नहीं जा रही है तो एक मीटिंग बुलाई जाती है. इन मीटिंग में दोनों पक्ष के वेल विशर्स, फैमिली मेंबर्स हो या फ्रेंड्स हो या कोई ऐसे व्यक्ति हो जो इस मामले में समझदारी दिखा सकते हैं, तो उन लोगों को बुलाया जाता है. इन लोगों के बीच में मीटिंग में डिस्कशन होती है कि मैरिज को कैसे सॉल्व किया जाए. इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम है, हाउ दे कैन मर्ज बैक टुगेदर. और अगर आफ्टर मीटिंग ये चीजें थिंग्स डजंट गो वेल, ओनली देन द फर्स्ट टाइम तलाक शब्द का यूज होता है. और कुरान का 65.1 जो वर्स है वो ये कहता है, ये when ye do divorce women, divorce them at their prescribed periods and count accurately their prescribed periods and fear Allah your Lord and turn them not out of their houses. ये क्लियरली कुरान का एक वर्स है कि आप प्रिस्क्राइब पीरियड में डिवोर्स देंगे और जो डेज है, जो पीरियड है वो आप एक्यूरेटली काउंट करेंगे. ऐसा कि नहीं कि आपने ऐसा ही काउंट कर दिया. यू हैव टू काउंट इट एक्यूरेटली. अगर आफ्टर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ और द अटरेंस ऑफ फर्स्ट तलाक दोनों मियाँ बीबी के बीच का रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, वो लोग
फिर से मिल सकते हैं, फिर से मैरिज जो उनकी थी वही उसी में रह सकते हैं। एक छोटी सी एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस खत्म होने के बाद दे कैन get back together, and after once they are back again, and if again things does not go well, then again फिर मीटिंग होती है। मीटिंग में ये सब लोग आते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। if things does not go well, then second तलाक is pronounced, and लास्ट में आता है थर्ड टाइम। सेकंड तलाक प्रोनाउंस करने के बाद फिर से ये दो लोग जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो फिर से, ये जो मियाँ बीबी है और मैन एंड दिस वुमन, वंस अगेन दे रिकंसाइल, और ये फिर से साथ में रहने लगते हैं। एंड अगेन थिंग्स डज नॉट गो राइट between them, then this is the last time, this is the final one, this is the third talaq, the pronounced third talaq, and this is irrevocable. इसका मतलब है कि after the pronouncement of this third talaq फिर से ये लोग as a husband and wife नहीं रह सकते। लेकिन इसके अंदर भी, कुरान के अंदर ये जो दो कोर्ट्स है वो स्ट्रिक्टली कहते हैं कि it should be, they should separate with kindness। ऐसा नहीं कि बहुत झगड़ा हो गया और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए दोनों सेपरेट हो। दोनों दे शुड सेपरेट विद काइंडनेस एंड दे शुड रिमेन कॉन्शियस ऑफ गॉड, और ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जिससे कि दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचे। तो बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या है? ये कंक्लूजन ये है कि ट्रिपल तलाक एज पर द ट्रू इस्लाम, ट्रू कुरान, जो प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के टाइम पे जो रियल डिवोर्स था वो इस प्रकार का था। वो एक स्टैगर्ड मैनर में था। वो ऐसा नहीं था कि आप किसी को एक ही सांस में 3 बार तलाक बोल दो और दैट मीन्स यू हैव डिवोर्स दैट वुमन। नो, इट इज नथिंग लाइक दैट। ट्रिपल तलाक में कंपैशन भी है, कोड ऑफ कंपैशन है। फॉर एग्जांपल दैट अगर वो डिवोर्स भी होता है देन यू गिव एलिमोनी मोर जेनरसली। आप दूसरी पार्टी को, फॉर एग्जांपल वुमन को, you have to provide a handsome amount of money or other things so that she can live a dignified life. The other thing is that after each pronouncement of talaq there is a waiting period. एक waiting period होता है और ये waiting period होता है to bring back things together. तो एक ये जो समझ है इस ट्रिपल तलाक के ऊपर, I think it is very important. Once ट्रिपल तलाक इसकी जो प्रोसेस है, then after that you will be able to judge whether it should be implemented or not, whether we need a uniform civil code. If we need, then what are the things that we are going to add in and remove. अभी का जो ट्रेंड है that ट्रिपल तलाक via SMS, via WhatsApp, via email, etc. etc. ये गलत है, ये कुरान के लाइन में नहीं है। So we should understand that thing as well. So that's everything in this lecture. What is triple talaq? I hope it has provided you some understanding. If you have any queries, do let me know. If you have any comments, then do feel free to share, and share this video, like our YouTube channel, follow us on Facebook, and send hi to our WhatsApp number to get some free daily material. Okay, I'll keep it till here. Enjoy. I'll see you soon with some more topics for your civil services preparation. Till then, take care. Enjoy.